Hello students, how are you? I received a message on Twitter account by one of my friend mentioning that gold started the rally from the month of December 2015 and this trend has completed 70 candles. That message took me to back in the old memories where I could manage to forecast the bullish trend in the precious metal gold and the top of the swing with reversal. It's always fun to share your old gold memories with your friends. Many times your vibrations are aligned to the nature or the price moves, hence you are able to forecast correctly and perform better. That's the law of vibration. Harmony is the key word. In reply, I posted that you reminded me the year 2015-16 जब मैं लिख पाया था well in time in the month of Jan on date was 6th or 7th that now gold is very bullish, hold for few months. और उसके बाद just before the peak, अभी 3-4 दिन रहते होंगे, at that time I could write कि this is the time जबकि एक बहुत स्पीड के साथ पीक बनेगा and from there the for few months then gold will be in downtrend. Let's find out that message. Message is very clear. That is on 7th Jan 2016, gold bullish about 24800, hold for few months. Gold is bullish about 24,800, hold for few months, and from there for few months gold was up and up only. Let's find out on the chart. Let's find, this is 8th of Jan and this is 6th and 7th of the Jan. That was where the breakout established. यहाँ से एक जो डाउन ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट हुआ और फ्रॉम दैट डे देयर वाज ए रैली फॉर फ्यू मंथ्स इवन टिल it reached to 15th of June and then first week of July. There was only uptrend. Market moved, the gold, the commodity gold moved from 25,000 to almost 32,000. And then next message was on 23rd of June 2016. As guessed, gold moved up with speed and now trading in a range. Tomorrow is a big event. Britain exit after impact will be very powerful if it happens. Gold may move upward if Britain exit. Resistance levels are 32,040, 32,400, 32,750. Let's see how things move tomorrow. From here to 6 months in future seems we may be able to witness big downtrend. Big trend based on weekly chart. Now fifth wave is due. Disclaimer, it's my guesswork on mathematical formula only. It may not hold good. It's for an educational purpose only. See on the chart. This is 23rd of June. This is 23rd of June. Next day there was a big spurt. जैसे मैंने कहा कल बहुत संभावना है एक बहुत बड़े जंप की अपने मैसेज में और बहुत बड़ा जंप हुआ और जो दूसरा मैसेज दैट आफ्टर ओनली फ्यू डेज अबाउट 1 वीक और 10 डेज जैसे सजेस्ट किया गया था इफ वी होल्ड आवर शॉर्ट पोजीशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जुलाई 6 महीने के लिए देन इट वाज एडवाइज टू होल्ड शॉर्ट और एग्जैक्ट 6 महीने बाद इट्स ए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड देन इट इज द दिसंबर 27th दैट वाज द बॉटम. एग्जैक्ट 6 मंथ के बाद दैट गोल्ड बॉटम आउट नियर टू 26,500 फ्रॉम द प्राइस ऑफ 32,000 प्लस. सो दैट वाज द फोरकास्ट which still I remember that those days that एक बार में 7-8 हजार पॉइंट की रैली और वहां से 6-7 हजार पॉइंट का करेक्शन. दोनों प्रेडिक्शंस बहुत डॉट ऑन टाइम जहां से ब्रेकआउट था वहां पे बाय
और जहां पे पीक बनना था वहां पे पीक, और जहां से करेक्शन होनी थी वहां से करेक्शन, और जहां पे करेक्शन कंप्लीट होनी थी दैट वाज आल्सो बीन नोटेड 6 months in advance. So that was one of the most successful forecasting. Thank you my dear friend for reminding me. Now at this point गोल्ड का क्या सिनेरियो है उसको चेक कर लेते हैं. दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन का चैनल लगाया हुआ है जो अपवर्ड ट्रेंड में है, और बिल्कुल इसकी जो लोअर बैंड है वहाँ पे 2 बार सपोर्ट ली है और अपर बैंड पे इट हैज़ टेकन ए रेजिस्टेंस. ये स्टैंडर्ड एविएशन 2 का रिग्रेशन ट्रेंड लगा हुआ है. लेट्स मेक इट रिग्रेशन ट्रेंड 3, स्टैंडर्ड एविएशन 3, और उसके बाद देन वी कैन हैव ए सप्लाई जोन. दिस जो लाइट ब्लू है दैट इज ए सप्लाई जोन, एंड ये जो पिंक है दैट इज ए डिमांड जोन. और जो एज है उस एज पे ही प्राइस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके चल रहा है. ये पूरा रोड मैप अहेड आगे कहाँ तक इस चैनल के अंदर वो बना रह सकता है, या कब इस चैनल से बाहर निकलकर इसका ब्रेकआउट होगा नीचे या ऊपर, दैट कैन बी टेकन इन अकाउंट. नाउ अगर हम बिल्कुल जो टॉप है, हम रिग्रेशन ट्रेंड कहां से लगा सकते हैं, या तो टॉप से लगा सकते हैं या बॉटम से. अगर मैं टॉप से मार्क करूं तो देन टॉप से मार्क करूं तो स्टैंडर्ड एविएशन 2 का ये रिग्रेशन ट्रेंड मैंने मार्क किया है, जो आज तक भी काम कर रहा है. अभी तक प्राइस इस चैनल से बाहर नहीं गया. अगर मैं प्राइम ट्रेंड बोलूं तो गोल्ड का अभी वीक ट्रेंड है, वीकनेस दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप चैनल के बीच में है, लेकिन उसी चैनल के बीच में एक नया चैनल जो शेप अप हुआ है दैट इज इन अप ट्रेंड. सो तभी हम लोग देख पाते हैं जो गोल्ड की मूवमेंट है वो कभी एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कभी बहुत तेजी से गिर जाता है. इंपॉर्टेंट ये जो ब्लैक कलर से मार्क किया गया है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन. जिसको ब्रीच करता है तो देन देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी कि ये अपवर्ड ट्रेंड में आ जाए, और देन देयर इज ए अनदर ट्रेंड लाइन जो नीचे अपवर्ड मूवमेंट वाला जो रिग्रेशन ट्रेंड है उसके बिल्कुल बॉटम पे मार्क की गई है. तो उससे अगर नीचे ब्रीच करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ओरिजिनल बैंड चल रहा है उसके लोअर बैंड तक वापस आ सके. अगर मैं कहूं तो इस समय एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी इन 2 ट्रेंड लाइन के बीच हो रही है. रिग्रेशन 3, स्टैंडर्ड एविएशन 3 के रिग्रेशन ट्रेंड की भी लाइन मैंने मार्क कर दी है. तो देन दिस कैन बी ए रोड मैप फॉर द गोल्ड इन टाइम्स टू कम. अभी इसके अंदर जो मूवमेंट है दैट इज इन ए वेरी स्मॉल रेंज, इट इज साइडवेज, और जहां अगर ये कहीं ट्रेंड फॉर्म करता है ऊपर या नीचे देन देयर विल बी ए ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रायंगल. नाउ it is time to publish levels for next week which is starting from 19th of July. Prabhu Kirpa se they are ready and I am going to just play those all levels over here. Last week was wonderful, one of the best weeks. UK 100 ने डॉट स्पॉट 2 को टच किया. अल्ट्राटेक और टेक महिंद्रा ने जबरदस्त गेन्स रजिस्टर किए और दे जूम आउट ऑफ द फाइनल रेजिस्टेंस आल्सो. HDFC Life managed to reach near to the final resistance. That was also a great show. Then HCL Tech फाइनल टारगेट जो सेकेंड राउंड का फाइनल टारगेट था 1055, वहां तक प्राइस गया 1050-51 का हाई बनाया और वहां से ड्रॉप टू 997. जो नए लेवल्स दिए गए थे कि 1034, 1013, 994, 977, 994 के लेवल पे सक्सेसफुली फ्रॉम द लेवल ऑफ 1050 HCL Tech managed to reach. That was a great show. ACC closed at the highest point above resistance 2. That was also wonderful. Lupin touched the second resistance successfully, and then ICICI
achieved all the 3 targets successfully. Silver managed to hit its first spot. L&T breached all the resistance and jumped by 7% in 1 week. Grasim almost hit third and final resistance. Bajaj Auto managed to hit the second spot, and then Tesla corrected from resistance 2 जो 695 था और $693 का हाई बना और वहां से वो करेक्ट करता हुआ ट्रेंड डिसाइडर तक वापस आ गया और दैट वाज ए वंडरफुल ट्रेडिंग। मेंथा ऑयल ने लास्ट वीक से मेंथा ऑयल हमारे को सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव करता हुआ दिख रहा है। मेंथा ऑयल ने इस बार भी स्पोर्ट 3 जो 961 है उसको बहुत सक्सेसफुली टच किया और इवन ब्रीच करने में भी सफल रहा। फ्रॉम 1003 विच इज रेजिस्टेंस 1, वहां से एक बहुत बड़ा फॉल अबाउट 45-50 पॉइंट्स का मेंथा ऑयल में देखा गया। मेंथा ऑयल का बीटा इज वेरी हाई और इस हाई बीटा स्टॉक्स में हर बार हमारे को 8 से 10% का रिवार्ड मिलता है अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ वी इनिशिएट ए ट्रेड। गोल्ड का सेकंड रेजिस्टेंस था 48,600 का और इसने हाई फॉर्म किया 48,500 जस्ट नियर टू इट, और जब ये अपने ट्रेंड डिसाइडर 47,871 को क्रॉस किया तो सीधा जूम्ड आउट टू 48,600 और वहां से करेक्ट करता हुआ वापस ट्रेंड लाइन पर आ गया। 2 मूव्स फ्रॉम ट्रेंड लाइन टू resistance 2 and resistance 2 to trend line. That was wonderful. Dr. Reddy hit the second support of 5,390 successfully. Maruti hits out all the support levels and just made a bottom dot on support 3 एकदम accuracy के साथ। ABB formed top at final resistance of 1,834 and corrected to 1,760 which is support 1. DAX 30 reached very close to support 2 wonderfully. Reliance touched resistance 2 successfully at 2,107 और उसको भी breach करता हुआ then it attempted to resistance 3. Eicher Motor hit the final support successfully. S3 स्पोर्ट 3 को भी छूने में सफल रहा और एक्सिस बैंक टच्ड रेजिस्टेंस 2 सक्सेसफुली एट 776 विच बिकम्स द ट्रेंड डिसाइडर और वहां से करेक्ट करता हुआ एक बार तो देन इट रीच्ड आउट टू 768। कैक 40 फ्रांस का जो इंडेक्स है मैनेज टू टच स्पोर्ट 2। बैंक निफ्टी 36,102 वाज अ रेजिस्टेंस 2 एंड विच वर्कड एज ए ट्रेंड डिसाइडर। फिर उसके बाद वो उसके उस लेवल से नीचे ही अपने ट्रेड करता रहा, ट्राई टू अटेम्प्ट बट उसको क्रॉस करने में असफल रहा। Amazon dived by $130 from trend decider and closed at lowest, means what? Clear profit of $130. Facebook hits the second support. Bank of America achieved the second target successfully. ITC का जो फाइनल टारगेट है 209.65 और जो हाई फॉर्म हुआ दैट वाज 209.65. Dot on it. So that was a wonderful week. Most of the stocks worked very well. ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, कुछ ने ऊपर के रेजिस्टेंस 3 और कुछ ने रेजिस्टेंस सपोर्ट 3 को टच किया। That was a wonderful week, or hopefully this week is also going to be a great week by touching the resistance and support levels. Let's hope the same. It's time to welcome all the new members. मैं वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में स्वागत करता हूं मिस्टर वरुण जैन का, मैं स्वागत करता हूं मिस्टर अंकुर उपाध्याय का, मैं स्वागत करता हूं मिस्टर संजय वत्स का, मैं स्वागत करता हूं मिस्टर रमेश सिंह का, मैं स्वागत करता हूं रामदास बैनीवाले का, मैं स्वागत करता हूं मिस्टर समीर भोंसले का। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से मेंबरशिप में एनरोल करने के लिए थैंकफुल हूं और ग्रेटफुल हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो लास्ट टू लास्ट वीक जो एनरोल हुए थे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं
उन सबका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मिस्टर विजय नाथन गणेश, मिस्टर विजय कुमार, मिस्टर बादल अग्रवाल, मिस्टर मैट एंड एनी ब्राउनी, मिस्टर नीतीश तिवारी, मिस्टर वरा प्रसाद एंड मिस्टर आशीष शाह, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है टू एनरोल विद द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। आप सबके जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टॉक को एनालाइज करवाना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। आई विल ट्राई टू make it possible by doing a small exercise on the your mentioned stocks. With this, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students. Lots of love and blessings.